Welcome to Best of Biology. Today we will discuss about packaging of DNA helix. Firstly, we will try to understand what is the need of packaging the DNA helix. क्या नीड है कि हमारी DNA helix को हमें पैक करना है. In previous lectures हमने डिस्कस किया है that the size of the DNA helix, the number of base pairs in human haploid genome is 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. This is the size of human haploid genome. Haploid means n number of chromosomes, right? So 2n number of chromosomes, that means the size of diploid cell is around 6.6 into 10 to the power 9 base pair, right? Now the length of DNA helix is taken out by multiplying the total number of base pairs with distance between two consecutive base pairs. So the distance between two consecutive base pairs, ये भी हम पढ़ चुके हैं. The distance between two consecutive base pairs is how much? It is around 0.34 nanometer, right? So this multiplied by total number of base pairs, that is 6.6 into 10 to the power 9. This comes out to be around 2.2 meters, that is around 6 feet. So our DNA molecule is around 6 feet long. That the length of DNA helix is 6 feet long. And we know that DNA is inside the nucleus, right? The size of nucleus is 10 to the power minus 9 meters. So think how it is possible कि हमारा DNA जो है around 6 feet long is packaged into just in a size of 10 to the power minus 9 meter. 6 feet long DNA molecule 10 to the power minus 9 meter size की न्यूक्लियस में कैसे फिट होगा? So that means DNA has to be folded. DNA को बहुत फोल्ड होना पड़ेगा. DNA has to be wrapped around something, right? DNA को हमें किसी के अराउंड रैप करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी फोल्डिंग करनी पड़ेगी and then it will be possible to wrap the DNA helix inside the nucleus, right? So this is why that the double helix DNA molecule has to be packaged and we will study about the packaging of DNA helix now. कैसे हमारी DNA helix को हम पैक करेंगे, we will discuss about that. Now you should know that DNA is a acidic molecule. DNA क्या है? Acidic है and it is negatively charged. DNA negatively charged है, ये हम discuss कर चुके हैं, right? In previous lectures we have discussed that DNA is a negatively charged molecule. So to wrap the DNA we need something positively charged, right? So positively charged के around हमारा DNA जो है वो पैक होगा and since DNA is acidic we need something basic, okay? So DNA is wrapped around a basic protein, ठीक है? DNA को wrap करते हैं around a basic protein. The name of the protein is histone. क्या बोलते हैं इस बेसिक प्रोटीन को? हिस्टोन. द हिस्टोन प्रोटीन इज बेसिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स. कोई भी प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड से, राइट? अ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है. हिस्टोन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स. कौन से अमाइनो एसिड्स हैं बेसिक? द हिस्टोन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है? तो ये दो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे हमारा हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ है. इनको बेसिक अमाइनो एसिड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव द फ्री अमीन ग्रुप. इनमें फ्री फंक्शनल अमीन ग्रुप होता है, दैट इज व्हाई दे आर बेसिक अमाइनो एसिड्स. फाइन. सो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन इज अ बेसिक प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है जिसके अराउंड हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो है, हमारी डीएनए हेलिक्स जो है वो रैप होती है, फोल्ड होती है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारा ये हिस्टोन प्रोटीन कैसा दिखता है. लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. फर्स्टली यू शुड नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन. कितने टाइप्स हैं हिस्टोन के? 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर देयर. क्या नेम्स हैं उनके? फर्स्ट टाइप इज H1, second is H2A, third is H2B, fourth is H3 and fifth is H4. So ये 5 टाइप्स हैं हिस्टोन प्रोटीन के. एंड टू रैप द डीएनए मॉलिक्यूल को, डीएनए डबल हेलिक्स को रैप करने के लिए हमें 8 पार्टिकल्स ऑफ हिस्टोन चाहिए होते हैं. कितने पार्टिकल्स चाहिए? 8
पार्टिकल्स ऑफ हिस्टोन आर नीडेड टू रैप द डीएनए। ये 8 पार्टिकल्स हमारे 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन बनाते हैं, ठीक है। एंड दीज 8 पार्टिकल्स ऑफ हिस्टोन टुगेदर आर कॉल्ड एज ऑक्टामर। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। 8 पार्टिकल्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स दैट आर नीडेड टू रैप द डीएनए इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। MER वर्ड यूज करते हैं यूनिट के लिए, ठीक है। सो मेड अप ऑफ 8 यूनिट्स इज कॉल्ड एज ऑक्टामर। सो 8 यूनिट्स ऑफ हिस्टोन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द हिस्टोन ऑक्टामर। सो ये हमारे 4 यूनिट्स हैं। ऑल दीज यूनिट्स आर नीडेड इन पेयर्स। ये पेयर्स में होते हैं, दैट मीन्स सबके 2 यूनिट यूज होते हैं टू मेक द ऑक्टामर, ठीक है। 4 into 2 होगा तो 8 हो जाएगा, राइट। सो इन सबके 2 पार्टिकल्स यूज करते हैं एंड एन ऑक्टामर इज मेड। वो ऑक्टामर कैसा दिखता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है एंड दिस लुक्स लाइक अ बॉल, ठीक है। ये बॉल के शेप में है। जो फ्रंट साइड है वहां पे हमें 4 दिख रहे हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। सिमिलरली इसके बैक साइड में भी है, ठीक है। सिमिलरली बैक साइड में H2A, H2B, H3 एंड H4 ऐसा होता है, ठीक है। सो ये हमारे 8 यूनिट्स बन गए एंड दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। फाइन। नाउ हमारा डीएनए हेलिक्स इस पे कैसे रैप होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल। सो ये इस पे ऐसे रैप होता जाता है, ओके। आवर डीएनए गेट्स रैप्ड ऑन इट लाइक दिस, ठीक है। इन एनसीईआरटी बुक दिस डायग्राम इज गिवन एंड यहाँ पे एक हिस्टोन H1 बना हुआ है, राइट। सो दिस H1 इज आउटसाइड द हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। ये H1 आउटसाइड द हिस्टोन ऑक्टामर है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमें क्या समझ में आया? दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एसिडिक मॉलिक्यूल है, सो इट नीड्स समथिंग पॉजिटिवली चार्ज टू रैप अराउंड, ठीक है। फोल्ड होने के लिए, रैप अराउंड होने के लिए डीएनए को कुछ पॉजिटिवली चार्ज चाहिए, राइट। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज अ बेसिक प्रोटीन मेड ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड का मतलब है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो अमीन है, ओके। नाउ जो हिस्टोन प्रोटीन हमें डीएनए को रैप करने के लिए चाहिए वो हमें 8 यूनिट्स में नीडेड होता है। 8 यूनिट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। फाइन। इस ऑक्टामर में कौन से 8 यूनिट्स हैं? H2A 2 पार्टिकल्स, H2B 2 पार्टिकल्स, H3 2 एंड H4 2, ठीक है। तो ये मिलकर 8 यूनिट बनाते हैं, दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। सो ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है, राइट। एंड दिस इज आवर डीएनए। This structure DNA plus histone octamer is called as nucleosome. क्या बोलते हैं इसको? Nucleosome. When DNA double helix is wrapped around histone octamer, तब उसको हम बोलते हैं nucleosome. And in one nucleosome हमारे कितने base pair of DNA wrap होते हैं? Around 200 base pairs of DNA. In one nucleosome there are 200 base pairs of DNA helix, ठीक है। डीएनए के 200 बेस पेयर्स हमारे 1 न्यूक्लियोसोम में रैप होते हैं, ठीक है। सो हमारे डबल हेलिक्स डीएनए को रैप होने के लिए देयर आर मेनी ऑक्टामर्स नीडेड, देयर आर मेनी हिस्टोन ऑक्टामर्स नीडेड फॉर रैपिंग द डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। सो इमेजिन दैट दीज आर हिस्टोन ऑक्टामर्स, दीज बॉल्स रिप्रेजेंट द हिस्टोन ऑक्टामर्स एंड हमारा डबल हेलिक्स डीएनए कैसे रैप होता है इसमें? लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए ऐसे रैप करता चला जाता है, ठीक है। सो जस्ट लाइक अ थ्रेड, ठीक है। जैसे ये रील है थ्रेड का, राइट, दिस रिप्रेजेंट्स अ रील एंड जैसे हमारा थ्रेड हम रैप कर सकते हैं रील पे, जस्ट इन द सेम वे द डीएनए हेलिक्स गेट रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि ये क्या है? न्यूक्लियोसोम, राइट। This is a nucleosome. When negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer, तो हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो ये क्या हो गए? न्यूक्लियोसोम्स हो गए, राइट। दिस स्ट्रक्चर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, राइट। द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम्स आर कॉल्ड एज क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड द थ्रेड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, राइट।
तो ये थ्रेड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. One more important thing is that the DNA between two nucleosomes, that is DNA between two nucleosomes is called as linker DNA. क्या बोलते हैं इसको? Linker DNA. लिंक कर रहा है ये DNA, राइट? सो इट इज कॉल्ड एज लिंकर DNA. लिंकर DNA के साथ हिस्टोन का H1 टाइप जो है वो अटैच्ड रहता है, ठीक है? सो H1 हिस्टोन इज लिंक्ड विद द लिंकर DNA, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट H1 हिस्टोन इज अटैच्ड विद द लिंकर DNA. और लिंकर DNA क्या है? बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम्स. टू न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो DNA है दिस इज कॉल्ड एज द लिंकर DNA. और इस लिंकर DNA में क्या अटैच्ड रहता है? H1 हिस्टोन. फाइन. नाउ लेट अस डिस्कस दैट हाउ दिस क्रोमैटिन इज फर्दर कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम. कैसे ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में कंडेंस होता है, लेट अस डिस्कस दैट. देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट जो ये क्रोमैटिन है व्हेन इट इज व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब क्रोमैटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं सो इट लुक्स लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. जैसे कोई माला दिखती है, द क्रोमैटिन लुक्स लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. जैसे ये हमारा DNA है, ओके, एंड दिस इज द क्रोमैटिन. सो क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक अ गार्लैंड, माला की तरह दिखता है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. बीड्स की माला देखी होगी आपने, राइट? स्मॉल ब्राउन बीड्स की माला होती है. सो क्रोमैटिन लुक्स इन अ सिमिलर वे, ठीक है? दिस क्रोमैटिन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लुक्स लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है? नाउ लेट अस सी हाउ दिस क्रोमैटिन इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में क्रोमैटिन कैसे कंडेंस होता है, लेट अस सी दैट. आई टोल्ड यू दैट क्रोमैटिन लुक्स लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है? तो ये हम समझ लेते हैं दैट दिस इज आवर क्रोमैटिन. फाइन. जब क्रोमैटिन को कंडेंस होना होता है देन इट रैप्स अराउंड अनदर प्रोटीन कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्मिन. न्यूक्लियोप्लाज्मिन, ठीक है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन इज अ प्रोटीन जिसके अराउंड जो है क्रोमैटिन रैप होता है, ठीक है? सो ये हमारा क्रोमैटिन है, ठीक है? एंड देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्मिन. न्यूक्लियोप्लाज्मिन एक प्रोटीन होता है जिसके अराउंड जो है क्रोमैटिन रैप होते हैं, ठीक है? क्रोमैटिन इज रैप्ड अराउंड न्यूक्लियोप्लाज्मिन. एंड जब ये क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्लाज्मिन के अराउंड रैप होता है, व्हेन दिस क्रोमैटिन रैप्स अराउंड द न्यूक्लियोप्लाज्मिन, तो ये कर्ल हो जाता है, ठीक है? कैसा हो जाता है? ये कर्ल हो जाता है. क्रोमैटिन बिकम्स कर्ल्ड, ठीक है? क्रोमैटिन जो है वो कर्ल हो जाता है, स्पाइरल शेप में आ जाता है. आपने स्प्रिंग देखी होगी, राइट? सो इट लुक्स लाइक अ स्प्रिंग. जब क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्लाज्मिन के अराउंड रैप होता है तो इट लुक्स लाइक अ स्प्रिंग. क्रोमैटिन जो है वो हमारा कर्ल हो जाता है, ठीक है? एंड दिस क्रोमैटिन गेट्स कंडेंस्ड एट हायर लेवल. हायर लेवल पे जब इस क्रोमैटिन को कंडेंस होना होता है देन सम एडिशनल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड. वो एडिशनल प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे क्रोमोसोम में. देयर आर सम एडिशनल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी क्रोमोसोम. क्या नाम है उसका? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन दी क्रोमोसोम जिसके अराउंड हमारा कर्ल्ड प्रोटीन जो है वो रैप होता है. दैट इज हमारा जो ये कर्ल्ड प्रोटीन है वो कैसे रैप होगा? इट विल रैप लाइक दिस, ठीक है? हमारे NHC प्रोटीन के अराउंड हमारा क्रोमैटिन जो है वो रैप होता है. सो दिस इज हाउ आवर क्रोमैटिन गेट्स कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम, ठीक है? क्रोमोसोम में हमारा क्रोमैटिन कैसे कंडेंस होता है? विद द हेल्प ऑफ टू प्रोटीन्स. फर्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्मिन इज रिक्वायर्ड. न्यूक्लियोप्लाज्मिन के अराउंड जब क्रोमैटिन रैप करेगा तो वो कर्ल शेप में आ जाएगा, स्प्रिंग की तरह रैप हो जाएगा. एंड टू कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम में कंडेंस होना होता है देन इट नीड्स NHC प्रोटीन. नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड जिसके अराउंड हमारा कर्ल्ड क्रोमैटिन जो है वो रैप होता है, टाइटली पैक हो जाता है, ठीक है? फाइन. दिस वाज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स. I hope it was very interesting. Plus it is very important topic from NEET exam point of view also and from board exam. Let us quickly revise. DNA helix is negatively charged.
right? DNA helix is acidic and is negatively charged. So to wrap around, basic proteins are present which are called as histone proteins. ठीक है, histone proteins are there which are basic due to the amino acids lysine and arginine. Histone octamer is needed to wrap the DNA helix. You can imagine like it is a reel around which the thread is wrapped. Reel के around हम thread को कैसे wrap करते हैं? Similarly, our DNA is wrapped around the histone. Fine. When this DNA is wrapped around the histone, negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone, तब हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या है? DNA plus histone octamer. Fine. Now when different nucleosomes are arranged, repeating units of nucleosomes are called as chromatin. ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम. जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में अरेंज होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. राइट. One important question that can be asked in NEET is how many base pairs are there in one nucleosome? So how many base pairs of DNA are there in one nucleosome? They are 200 base pairs. This can also be asked that what is the name of the DNA that is present between two nucleosomes? So the DNA that is present between two nucleosomes is called as the linker DNA. ठीक है, क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए. द डीएनए दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम. एंड लिंकर डीएनए पे जो हिस्टोन प्रोटीन की टाइप अटैच होती है ऑन द लिंकर डीएनए, उसको क्या बोलते हैं? H1 हिस्टोन. ठीक है, H1 हिस्टोन इज द हिस्टोन दैट इज अटैच्ड ऑन द लिंकर डीएनए. फाइन. तो आवर क्रोमैटिन लुक्स लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. ठीक है, जब क्रोमैटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सो इट लुक्स लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. फर्दर हमने डिस्कस किया कि क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में कैसे कंटेंस होता है. सो देयर आर टू प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट आर फर्दर नीडेड. फर्स्ट इज द न्यूक्लियोप्लास्मिन. न्यूक्लियोप्लास्मिन के अराउंड जब क्रोमैटिन रैप करता है तो वो कैसा हो जाता है? कर्ल शेप. ठीक है, वो कर्ल्ड हो जाता है, स्प्रिंग शेप में आ जाता है. एंड देन इनसाइड द क्रोमोसोम देयर आर एडिशनल प्रोटीन्स प्रेजेंट दैट इज द NHC प्रोटीन. NHC क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, जिसके अराउंड क्रोमैटिन रैप करता है. ठीक है, एंड इट इज फाइनली टाइटली पैक्ड. ठीक है, हमारा क्रोमैटिन जो है वो टाइटली पैक हो जाता है. हमारा डीएनए जो है दैट इज टाइटली पैक्ड इनसाइड द क्रोमोसोम. फाइन. दिस इज कॉल्ड एज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. Now let us see some questions that are asked in previous year NEET exam from the packaging of DNA helix topic. So this is a question that is asked in previous year NEET 2017 exam. NEET 2017 में ये question पूछा गया था that association of histone H1 with a nucleosome, association of histone H1 with a nucleosome indicates DNA replication is occurring, DNA is condensed into chromatin fiber, DNA double helix is exposed और ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग. क्या बोला है क्वेश्चन में? दैट एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 हिस्टोन हमने देखा था कहाँ पे है. ठीक है, हिस्टोन H1 which is attached to the linker DNA when it is attached with a nucleosome. जब न्यूक्लियोसोम के साथ H1 अटैच होता है, एसोसिएट होता है, तब वो क्या इंडिकेट करता है? क्या डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है? इज द डीएनए रेप्लिकेशन अकरिंग हियर? नो. डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर. क्या डीएनए जो है वो क्रोमैटिन फाइबर में कंडेंस हुआ है? डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड. डीएनए डबल हेलिक्स एक्सपोज हुई है मतलब इज डीएनए हेलिक्स अनकॉइल्ड. ठीक है, एक्सपोज होना मतलब इज इट ओपन. एंड ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग. क्या ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है? इज डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए. तो हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन अकरिंग, राइट. और न ही हमारा डीएनए हेलिक्स जो है वो अनकॉइल हुआ है, न ही डीएनए हेलिक्स जो है वो एक्सपोज हुआ है, राइट. सो व्हाट इज इट? दैट डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन. क्रोमैटिन क्या होता है? व्हेन देयर आर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम, राइट. सो इसी स्ट्रक्चर को तो हम क्या बोल रहे थे? क्रोमैटिन, राइट. दिस स्ट्रक्चर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन. तो हमारा H1 जो है जब न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएट होता जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन. सो एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन विथ न्यूक्लियोसोम क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर. ठीक है, सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. फाइन. अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर इज नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोसोम. In a nucleosome, the number of base pairs of DNA are 300, 100, 200 or 400. So this we have discussed
that the number of base pairs present in a nucleosome are 200 base pairs. ठीक है, ये डिस्कस किया था हमने that 200 base pairs of DNA are present in a nucleosome. ठीक है, so I hope that through this video lecture the topic of packaging of DNA helix is very clear. Please review me in the comment section. Comments करके जरूर बताइए that if there is any doubt or if you like the lecture, if you think that मेरी वीडियो लेक्चर से किसी को हेल्प मिलेगी, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड डू हिट द लाइक बटन. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए. थैंक यू.